ہماری جماعت کے صوبائی ناظم اعلیٰ فضیلت الشیخ محترم پروفیسر محمد ابراہیم طارق صاحب حفظہ اللہ، وہ آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے بڑے بڑے آگے ہو جائیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے۔ درود و سلام ہو رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے۔ آپ احباب کے سامنے مختلف علماء کرام خطابات فرما چکے، اور میرے بعد میری جماعت کے عظیم مبلغ شاید کہ اتنی ہماری عمر نہ ہو جتنا ان کا ماشاءاللہ تبلیغ کا وقت گزرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خوش نصیبی ہے اس علاقے کی کہ آج کے پروگرام میں ہمارے شیخ محترم تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اور میرے شیخ کے بعد مفتی صاحب دعا کریں گے، لیکن ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جو زبان سے لفظ ادا کرتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، جو عملی طور پہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہوا میں اڑ جائے اور ختم ہو جائے، بلکہ آپ کا اور میرا
جاتا ہے کل قیامت کے دن کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری بات نہیں یا میرا فعل نہیں یا میرا عمل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو آپ کے دل کے اندر وسواس پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی مالک جانتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی یہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جو آپ کے دل میں خیالات آتے ہیں، بعض اوقات انسان بری چیزیں بھی سوچتا ہے کہ میں ایسے کروں گا، یہ کام کروں گا، اس طرح سے کروں گا، جب تک یہ کر نہیں لیتا وہ لکھا نہیں جاتا۔ یہ مالک کی مہربانی ہے۔ حالانکہ اللہ تو کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ زور سے بولے۔ ایسا کوئی بات آنے والی ہے اور آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں جیسے تمہیں بر میں لگا دیا گیا۔ اللہ کے بندوں قرآن سے محبت کا اظہار کرو۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ ایک دفعہ اور بولیں، پیار سے آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، لکھنے والے موجود، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے ایسے لکھا تھا، ایسے لکھیا تھا۔ اس لیے زبان سے جب آپ ادا کرنا چاہتے ہیں سوچ لیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ پہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے یا تو وہ اچھی بات کرے یا خاموشی اختیار کرے۔ اچھا بولو، کسی کے بارے میں اچھائی آپ کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ اعلیٰ ہو۔ اس لیے تو امام بخاری نے یہ کہا تھا کہ یہ جو قول ہے یا عمل ہے اس کا وزن ہوگا اور یہ ترازو میں رکھا جائے گا۔ رب کہتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جس کا وزن زیادہ ہوا عمل وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو بندہ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ جب رب کا یہ فیصلہ ہے عمل اچھا کرو گے وزن اس کا زیادہ ہوگا، آپ کے عمل اچھے نہیں ہوں گے برائی ہوگی۔ یاد رکھنا، یہاں نہیں سوچتا وہاں جا کر کے کہے گا اے کاش میں نے نہ کیا ہوتا۔ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دینے والا، غور کر ذرا، اپنے ہاتھ سے تکلیف دینے والا آج نہیں سمجھتا، اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا میں یہ سارے معاملات ختم کرنے کی کوشش کی۔ میرے نبی نے نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دی نہ زبان سے کسی کو تکلیف دی، بلکہ آپ کے دل میں یہ ڈر تھا کہ مجھے بھی جواب دینا ہے۔ امام بخاری کی ایک کتاب ہے، صحیح بخاری کے علاوہ الادب المفرد کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کے اندر حضرت ام سلمہ کی روایت لائے۔ وہ کیا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی خادمہ کو آواز دی، وہ نہیں آئی،
दोबारा आवाज दी, फिर नहीं आई। तीसरी मर्तबा उम्मे सलमा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी मैं जाकर के देखती हूँ उस तक आवाज भी जा रही है कि नहीं। जब ये वहां पहुंची, आपने आवाज दी तो आवाज तो आ रही थी, लेकिन ये बकरी के बच्चे के साथ खेल रही, बकरी के बच्चे के साथ खेल रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर के बतलाया कि आपकी आवाज आ रही थी, लेकिन ये बकरी के बच्चे के साथ खेल रही थी। आपके हाथ में मिसवाक थी, नबी अलैहिस्सलाम उठे, गुस्सा आ गया। आप उसके करीब गए, जाके यूं मारने लगे तो अपना हाथ रोक लिया, हाथ पीछे कर लिया। मेरे नबी ने फरमाया लौलल उदुला औजातु की बिहाद सिवाक, अगर मुझे अल्लाह को जवाब ना देना होता, अल्लाह के सामने मुझे पेश होकर के इसका जवाब ना देना होता, मैं तुझे मिसवाक के साथ तेरी पिटाई करता। लेकिन मुझे भी ये मामला अल्लाह के सामने जाकर के इस मामले का जवाब देना है, इसलिए जरा गौर करना। दुनिया में अपने मामला निपटा लेना, दुनिया के अंदर अपने अमल की हिफाजत कर लेना, कभी किसी को ज़बान से तकलीफ ना देना, हाथ से तकलीफ ना देना, किसी का माल खा के हक खा के, बड़े हैं राया को हक अगर खाते हैं, राया का ख्याल नहीं करते, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। इसलिए कि मेरे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखना, शाम के सफर से वापस आए जा रहे थे, एक बूढ़ी अम्मा रास्ते में मिल जाती है, सलाम उसको किया, वालेकुम अस्सलाम के बाद हजरत उमर फरमाने लगे अम्मा जी तुझे पता उमर कहाँ से आया? कहने लगी मुझे तो पता नहीं। हजरत उमर फरमाते हैं जज़ाहुल्लाहु खैरन, उमर को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। उमर तो शाम के इलाके से वापस आया है। बूढ़ी अम्मा ने सुना तो क्या कहती है, अल्लाह जज़ाहुल्लाह, अल्लाह इनको जज़ा ही ना दे। अम्मा ने अपने हिसाब से कहा कि अम्मा जज़ा तो जी बात जो ज़हन में आई वो कह दे कि उमर को अल्लाह जज़ाए खैर न दे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हो गए और मैं अम्मा जी बात क्या? कहा जाता शाम में है, मदीने के अंदर मैं रहती हूँ, मेरा ख्याल ही नहीं है, तो मैं कैसे उनके लिए दुआ करूँ? पर मैं अम्मा जी आप किस तरह राज़ी हो जाएंगी उमर से, मैं आपकी सुलह कराता, मैं आपकी सुलह कराता हूँ। बातें करते करते 20 दिरहम पे अपनी राजी हो, कहा 20 दिरहम मुझे दे दे, मैं उनसे सुलह कर लूंगी। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले जाते हैं दरबार वाले के पास, माल भी लिया, जनाबे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, अबू उबैदा बिन जर्राह, तीनों इकट्ठे होकर के जब जाने लगे तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सामान उठाया। इन्होंने कहा हम उठाएंगे, फरमाया ये बात नहीं है, मैं यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा, इसके बाद फरमाया मैं ही लेकर के चलूंगा। जब उसके पास चले गए, अम्मा ने उमर को भी आते हुए देखा, लेकिन पता नहीं यही उमर है। जब सामान रखा अम्मा के सामने, वो मुकाबला करने लगे, अम्मा जी अपना हक छोड़ दीजिए। आगे से कहती है मैं दुआ करती हूँ काश तू उमर की जगह पे अमीरुल मोमिनीन होता, तू ही उमर होता, वो ना होता। जब इतनी बात की मुकाबला हो गया, अम्मा को पता नहीं ये बोलती उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अबू उबैदा बिन जर्राह ने आगे से फरमाया अमीरुल मोमिनीन मामला हल हो चुका है। जब अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज अदा किए, अम्मी घबरा गई, कहती है मुझे नहीं पता था कि यही उमर है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्यों ये मामला किया? फरमाया दुनिया में हल करना चाहता हूँ, रब के सामने इसका जवाब नहीं दे सकता था। दुनिया में अपना मामला आज
बाद औकात एक मजलूम जिसको पाँव के तले तो रोक के चला जाता है, उसकी दुआ अर्श पे चली जाती है, तो उस मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती। मत किसी का हक खाओ, मत किसी को तकलीफ दो। अगर उमर अपने मामला इस अंदाज से, और कुर्बान जाऊं सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये किधर है स्पीकर वाला? ओए काका सीधा हो जा रहा। हज़रत सिद्दीक, क्योंकि मैं तो यहाँ का हूँ, अभी तो हमारे बड़े शेख ने तकरीर करनी है। ये क्या है? ये पता लेना गया। हज़रत सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बंदे के साथ, मुस्नद अहमद की रिवायत, मामला हो गया लेन देने के ऊपर। जब देने के लिए गए जगह, उसने आगे से बातें की। हज़रत सिद्दीक गुस्से में उनको कुछ कह के चले। फिर बाद में ख्याल आया, यार मैंने तो गुस्से में इनको कुछ बोला है। उनके पास के कहा मुझे माफ कर दो। वो राजी ना हुआ, वो राजी ना हुआ। तो सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जल्दी से अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे। कायनात के इमाम, फलां बंदा मेरे साथ राजी नहीं हो रहा। मेरे नबी ने फरमाया सिद्दीक को छोड़ दीजिए। लेकिन सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां बैठ के अल्लाह के सामने रो रहे हैं। अर्ज करने का मकसद ये, अल्लाह के बंदे, दुनिया के अंदर जो भी तू करेगा वो तेरा बोलना हो, तेरा बैठना हो, तेरा कहना हो, अमल करना हो, सारे अमाल रिकॉर्ड के अंदर लाए जाएंगे। कोई इनकार नहीं कर सकता है। वक़्त की किल्लत की बिना पे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या बयान करके कि मेरे नबी ने दुनिया के अंदर इस मामले को खत्म करने की कोशिश की है कि अल्लाह के सामने जाकर के जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। कायनात के इमाम, जिसको रब ने हमारे लिए नमूना बनाया, जैसे कि अल्लाह का कुरान वादे करता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह को रब ने नमूना बनाया। फिर आपको देख लीजिए, हम तो जुल्म पे जुल्म किए जाते हैं। हम तो कभी सोचते नहीं। मेरे नबी से अचानक मसला भी बना है, तो वहां भी मेरे नबी ने मामला क्या किया? ग़ज़वा हुनैन से वापसी का मौका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा साथ हैं, लेकिन इंतजाम है। एक अराबी आता है, जूते उसने जो पहन रखे थे मोटे मोटे वज़नी जूते थे। अचानक उसका पाँव मेरे नबी के पाँव के ऊपर आ गया। जब अल्लाह के रसूल के पाँव पे उसका पाँव आया, नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में सौत दुर्रा था, आपके हाथ में। आपने उसे कहा अंतल्लज़ी औजअतनी, अरे तूने मुझे तकलीफ पहुंचाई। आपने यूं मारा जल्दी में, जानबूझ के नहीं, अचानक जैसे मामला हो जाता है, आपने यूं मारा। वो बेचारा परेशान हो गया कि गलती मैंने बहुत बड़ी कर दी कि मेरे पाँव ने अल्लाह के नबी के पाँव को दबा दिया। पाँव भी मोटे हैं, जूते भी वज़नी पहने हुए। खैर रात गुजर गई। सुबह फजर के बाद वो अपनी कैफियत बयान करता है, मैं रात परेशानी के अंदर था, पता नहीं मेरे बारे में रब क्या कहेगा, सुबह क्या हुआ गौर करना। फजर के बाद ऐलान करवाया गया उस बंदे को लाया जाए। वो बंदा आ गया डरता डरता मेरे नबी के करीब आया। आपने फरमाया अंतल्लज़ी औजअतनी, तू ही वो बंदा जिसने मुझे तकलीफ दी थी। अचानक उसने कहा जी मैं हूँ, डरते डरते जवाब दिया। मेरे नबी ने फरमाया उन्जुर, देख इस तरफ ज़रा इलल जबलैनी, इन दो पहाड़ों की तरफ देख।
दोनों पहाड़ों के दरमियान 80 दुम्बियां अल्लाह ने मुझे अता की है, जा सारी की सारी मैं तुझे देता हूँ। 80 दुम्बियां मैं तुझे अता कर देता हूँ, मामला यहाँ खत्म हो जाता है। तो मेरे भाई ने कहा एक बात कही थी वो जरूर अर्ज कर देना, क्योंकि मिकाईल इधर आके बह गए। हम कहते हैं कि ये नबी अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं, रब ने बनाया नहीं, उनके मुकाबले में कोई है नहीं। सोने का जवाब नहीं, सोने का जवाब नहीं, जवाब रहन दे उस लाजवाब नू, तो लाजवाब रहन दे। सोने का जवाब नहीं, जवाब रहन दे उस लाजवाब नू, लाजवाब रहन दे। हम सबको मानते हैं, हमें कहते हैं मानते हैं, हम कहते हैं जितना हम मानते हैं आप नहीं मानते। अली उल मुर्तज़ा साडी अखियां दे तारे ने, हसन हुसैन सानू जान तो भी प्यारे ने। जन्नती नवाब ने नवाब रहन दे, जन्नती नवाब ने नवाब रहन दे। सोने का जवाब नहीं, जवाब रहन दे। बड़ी प्यारी बात, चंपा ते चंबेली फुल बेशुमार ने, जगह जगह सबना दे सोने महकार ने। पर सोने मुस्तफा नु तो गुलाब रहन दे, सोने मुस्तफा नु तो गुलाब रहन दे। सोने का जवाब नहीं, जवाब रहन दे। सिंधी टोपी वाले सुन ला फिर, गुले गुलड़ियों बेशुमार हन, जाए जाए सबड़न जा सोना महकार हन। पर सोने मुस्तफा के तो गुलाब रहन दे, सोने जो जवाब ना है जवाब रहन दे। औरत अमीर साहब मैं शर्त देने जिदो तो अपने सताना है, कोई पीर तेनों भी नजर ही नहीं आना है। मैं शर्त देने जिदो तो अपने सताना है, कोई फकीर मांझी सांझी नजर नहीं आना है। सोने मुस्तफा ने सानू, सोने मुस्तफा ने सानू गल नाल सीने नाल लाना है। अल्लाह जी उम्मती ने मेरे जुमदियां हाथ उठाए जरा, उम्मती ने मेरे हिसाब रहन दे, उम्मती है मेरे हिसाब रहन दे। सोने का जवाब नहीं, जवाब रहन दे, सोने का जवाब नहीं,